तो जी सुबह के बज गए 8:12 और हमारे दिन की आज शुरुआत हुई है। ये देखिए बस सुबह सुबह की आग। हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक एज यूजुअल। मार्को हमारे साथ कल उन्होंने ज्वाइन किया था। ही इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नीज 1 year बैक from his origin country. From France. Yeah. So how you thought of traveling? Okay, we can come this side. How you thought of traveling like the whole world on this bicycle? How? How it came into your mind? Oh, yeah, it was decided for a long time. Yeah, I decided to do my job during 3, 4, 5 years and then spare money and go. Okay. Not traveling the world, discovering the world, meeting people, having my own opinion on countries and not believing the news as well. What's your age? 32. 32. Yes. Great. And how many countries you have covered so far? India is the 16th. 16th country. Yeah, on this trip. And how long you will be on your bicycle? I don't have any deadline. I can be on the bicycle the next 20 years. Great, is it so? I don't know. Maybe I'm gonna stop in Southeast Asia or Indonesia, probably. Yeah. What inspired you to do such things in life, and what it gives, what add-ons it makes in your life? So the inspiration, I think, comes from a conference I saw like 15 years ago of two people traveling by bicycle, and they were looking at the different type of agriculture in the world. So I think they inspired me first. And then I'm a biologist and I'm looking at the rivers a lot. So I'm actually looking at all the rivers on the way, you know, to understand them better, to have an overview of the rivers of the world. So that's also why I'm traveling. Great. And your second question was? What inspired you and what add-ons it made in your life? So the add-ons for me are like on the professional side, because it's very interesting for me to see the rivers. And I've done a project, I mean, it's still running, a project with a friend of mine. He's an history and geography teacher. And I went in the classrooms of the children with the bicycle to tell them and to explain the travel, why I'm doing that exactly. Like, yeah, the reason, you know. And so they were able to ask me a lot of questions, and now they are following the travel, and my friend uses like the place I travel to in the courses. Okay. Well. Yeah. Great. Which country you like the most till now? Which country I like the most? I think Turkey. Turkey. Yeah, Turkey is one of the best countries, I think. People are nice. Landscape is amazing. The climate was good at the moment I was there. So, and the food is really awesome. Oh. You seems to be a great foodie. Much better than my pasta, you know. How about India? India is great. India is great. I would say this is a bit a love and hate relationship sometimes. Love because of people, and food. This is really amazing food, amazing people here, very hospitable. Yeah. The driving is really bad, I have to say, and quite dangerous. And yeah, otherwise very busy country. So for cycling, it's not easy every day. That's it. Great. But otherwise, I love it. How do you manage your expenses? Like you mentioned, you earned for around 5 years, and then you accumulated. Exactly. So I reduced to the like almost the minimum my expenses during 5 years. So I didn't have a car, for example. I planned my life to be able to go by bicycle from my home to my job. So I didn't need a car. So this is a lot less expenses, you Correct. know. And so I was able to spare money during around 5 years, and Correct. then I decided to go like that after. How would you like to spend the rest of your life? I'm gonna continue traveling during at least 6 months, and then I think I'm gonna go back on my job because I loved it and I miss it. Okay, I miss being outside, you know, like doing some monitoring on the rivers, my biological life. Great. Okay, the last question. If you are given a chance to get married, which country you would like the most to be married? To be married. Wow, this is a really tough question. I don't know.
like some beautiful places. I don't know, maybe Indonesia, there's beautiful beaches, jungles and stuff. Maybe it's the paradise to be married there, no? Great. Okay, Marco, all the very best, and we wish you for the whole life, not for the journey, for the whole life. Our wishes are with you. The whole Indians' wishes are with you, and we wish what you expect from your life. That. Thank you very much. All the best for you too. Thank you. Like that, I hope that you'll meet a lot of people, and I invite you people to join this nice overlanding trip that has been lasting for like 6 years or something. Yeah, almost 6 to 7 years. Amazing. All right. Yeah, thank you. तो जी मार्कोस से हम ले रहे हैं इजाज़त, बस वो शायद निकल जाएंगे जब तक हम लौटेंगे, और हम चल रहे हैं यहाँ से। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं इनके व्यक्तित्व की आपको बताता हूँ कि इनका कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि कोई यूट्यूब चैनल, जैसा कि भारत में एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि भाई हम ट्रैवल इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपनी चीज़ों को अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाएँ। हम भी इससे ग्रसित हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हम इससे बाहर हैं, पर देखिए एक ऐसा ट्रैवलर जो निरुद्देश्य निस्वार्थ भाव से संपूर्ण विश्व में, हम तो भारत में ट्रैवल करते हैं, पर वो संपूर्ण विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, विश्व की संस्कृति को जानने के लिए, स्वयं के जीवन में कुछ ऐड ऑन करने के लिए। मुझे लगता है इस तरीके के लोग ही जो होते हैं ना, वो सन्यासी होते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। जीवन जीने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो रही जी सामने हमारी गाड़ियाँ, और ये रहे हमारे परिवार के लोग जो जाने वाले हैं इस सड़क पे, जो जाती है मोरी की तरफ। मुझे नहीं पता मोरी यहाँ से कितनी दूर है, पर आज पैदल जाएंगे और इस बाल्टी में दूध लेकर आएंगे। इसमें पानी और साथ में चाय पीते हुए। बताइए, आज पहली बार वॉक कर रहे हैं। और ये है देखिए मोरी विलेज। आज कोई जश्न चल रहा है वहाँ पर। अभी हम ऊपर हैं पहाड़ी पे, बस नीचे चलते चलते पहुँचते हैं इस गांव में। तो जी ये पहुँच गए मोरी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था बस। सर यहाँ दूध कहाँ मिल जाएगा? डेयरी है क्या कोई बाजार में अंदर? ठीक है जी, धन्यवाद। ये है मोरी का मेन मार्केट। यहाँ पर हमें ढूंढना है दूध। ये सब यहाँ डेयरी कहाँ पर है? दूध की आगे डेयरी आगे है जी। सर जी ये है मिठाई की दुकान, देखिए जलेबियाँ और बाकी सब मिठाई। बहन जी डेयरी आ गई है यहाँ। यहाँ पर ना ये खूब मिल रहे हैं जो सब्जियों के बीज हैं। संभवतः लोग उगाते होंगे इनको, बाकी तो खैर जो रूटीन चीज़ें सब मार्केट में होती हैं वो हैं ही सही। मम्मा को पूछो मटर लेनी है क्या? मटर लेनी है क्या? मटर क्या भाव साहब? मटर 1 किलो ले लें 50 से। हाँ मतलब ऊपर बनाएंगे कुछ। 1 किलो देगा जी। तो जी मटर एकदम फ्रेश लग रही है, देखिए कितनी बढ़िया मटर है। हाँ तो यहाँ रख देते हैं ना, मतलब तोल के रखवा देते हैं फिर अपन जी। गाय का होगा? गाय का है, वो दे दीजिए। क्या भाव है? 1 लीटर आप भी 3 किलो दे दीजिए। तो ये बन रही है यहाँ पर, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं जो आप बना रहे हैं? मटर बोलते हैं। अच्छा, ये क्या भाव आती है? हाँ
300 रुपये किलो। तो आप हमें दे दीजिए पाव। ये बन गई जी हमारी, जिसको हम सांखे बोलते हैं। ये है इनके यहाँ, क्या बोला? मटर। मटर मटर क्या? अरे मीठा क्यों खा रहे हो यार? होगा तो अच्छा ही हो। तो भाभी को मिल गया यहाँ पर घी। वाह। हम लोग सर, मैं अजमेर से हूँ, ये गुजरात से हैं, मतलब मैं राजस्थान से, ये गुजरात से, वो अमृतसर से हैं, पंजाब से। एक बार दिखाइए भाभी जी। अरे वाह, ये देखिए, इसमें तो हाँ। चलिए जी, तो घी ले लेते हैं और सब्जी हमने ले ली। इसका सजग चीज है, निकालेंगे ना आप जिस चम्मच से। हाँ, उंगली नहीं लगानी इसमें, उससे खराब हो जाता है। नहीं तो आप इसको जब तक मर्जी 2 साल तक रोको। 2 साल तक, ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है। वाह वाह, तो खरीदारी हो गई जी, खूब सारी। तो हम पहुंच गए जी। ये तो पहले ही आ गए थे, क्योंकि मुझे रास्ते में एक भाई साहब मिल गए थे, जिनसे मैं बातचीत करने में व्यस्त हो गया। ये पहुंच गए, मार्कोस यहीं है अभी। वाह। They live in these valleys, isolated because from they the. have been pushed away. They were living around Chitral, till Gilgit, and those places, and they were like. And they're not Islam. No. They are Kalash people. Speaking Kalashawar. वाह सर वाह, बहुत अच्छा रहा आज का मॉर्निंग वॉक। अच्छा रहा। हमें निमंत्रण मिला है सर कहीं आने के लिए। एक उपखंड अधिकारी मिले अभी हमें, शिक्षा उपखंड अधिकारी, तो उनसे बहुत अच्छे बात हुई। वो बोले सर मैं मेरी गाड़ी लेकर आता हूँ, आपको स्कूल्स दिखा के लाऊंगा। यहाँ के एक हॉस्टल है जहाँ पर गरीब बच्चियाँ हैं, वो वहाँ पर रहती हैं, तो मैं आपको आज मैं आता हूँ दिन में, तो मैं लेके चलूँगा। मैंने कहा सर, जो राम जी ने तय किया। यस, एक सन्यासी की संगत मिल जाए जीवन में, और क्या चाहिए। तो ये मतलब इट इज आवर fortunate pleasure that we have the pleasure of your company. I'm very fortunate as well. I'm learning a lot because, you know, all the Sikkim region, I don't know anything about Darjeeling, Sikkim, and he has been telling me a lot of advices to go there. Correct. वो हमारा घर है ना। Correct. उस इलाके में तो हम पले बढ़े हैं, तो सही बात है। इनको आई कैन गाइड हिम कि रोड कौन सा लेना है, जंगल कौन सी देखनी है, कहाँ जाना है। बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र रिवर। और देखिए मित्रों, इसे ही कहते हैं संयोग और नियोजन। एक व्यक्ति जो फ्रांस से चला, वो आज उसका मिलना हमसे तय था, परस्पर बातचीत और अनुभवों का आदान प्रदान। और मार्को यहाँ पर रुकने तो एक रात के लिए आए थे, और एक और दिन वो हमारे साथ रुक रहे हैं, क्योंकि बस संगत का आनंद है, तो आनंद के आगे तो क्या ही होता है जी। तो चलिए, बस हो चुका है दिन तो मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे होंगे लगभग, और हमारे भोजन इत्यादि की तैयारी हो चुकी है शुरू। तो बस हम भी करते हैं चीज़ें पूर्ण, और आज हमें यहाँ से कहीं जाना है। तो अभी पापा सफाई कर रहे हैं। जो गाड़ी में धूल भर जाती है, वो उसको निकलने में मुश्किल होती है, इसलिए हम उसको वैक्यूम से साफ कर रहे हैं। हमारी पेंटी में बने हैं आज कड़ी और सांखें, जिनको टेस्ट करने वाले हैं जो फ्रांस से जो आए हैं। हाँ, मार्कस, तो वो टेस्ट करने वाले हैं इसे। हाँ, चम्मच है के बाहर? चम्मच।
चम्मच 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 चम्मच। चलिए कितना मैंने तुम्हें इतना सुनाया था जब तुम्हारे जूते उतारे थे, जो तुम इतना सुना के दिखाने के लिए उतारे थे। मैं को दिखाने के लिए नहीं उतार रही हूँ। जाओ हटो हटो हटो। ये नहीं चप्पल कहाँ चले जा रहे हो? Try this typical Rajasthani dish. It is served in Rajasthan. It is very common. I enjoy it. Is it spicy? Yeah, it's spicy for me. For you? Yeah. Rajasthan is known for its For the spices. Yeah. Hot food. Hot food. Yeah. तो संजय जी आज जाने की बात कर रहे हैं और आपके लिए सर वो गाना याद आ रहा है हमें। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो सर बताइए, अब जब हमें ही पाइएगा तो कहाँ जाइएगा? हम रूट के नहीं जा रहे हैं ना विवेक जी, पेट के लिए जाना पड़ रहा है। पेट के लिए नहीं, एसी के बिल के लिए जाना पड़ा। ये बात भी सही। पेट का तो जुगाड़ आपके पास 30 साल का है। ये बात भी आपने सही कहा, एसी की बिल और आईफोन के लिए जाना पड़ रहा है ना? बिल्कुल सही कहा। वाह। बट जल्दी ही हम दोनों से निकलने की कोशिश में तो है, देखिए कब निकल पाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये 2 पैसे की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, आए हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। बताइए अब क्या करें, जाना पड़ेगा। अभी हमारे पास आपके जैसी आजादी नहीं आई। आप नहीं ना सर, आजादी इसलिए नहीं, आपके पास पैसा ज्यादा है ना। नहीं, हमारे से ज्यादा, इसलिए मजबूरी है। जिस दिन वो कम हो जाएगा बस कब खत्म। थोड़ा तो चाहिए। हाँ नहीं चाहिए ही ना, बिल्कुल। क्या गजब। ले आइयो खुद ही जाके। बहुत तेज गर्मी, ऐसे बॉडीगार्ड धूप चिर रही है। बॉडीगार्ड। ये कितनी देर रहेगी ये गुर्रहमत दीदी? देखते हैं कितनी देर। कभी खेलने के लिए अपना ले जाएंगी? ले जाएगी। मुझे मालूम है। अभी ध्यान रखा ना। चल जा, हटा। कैंपिंग में लड़ाई हो रही है, बहुत गजब लड़ाई हो रही है भाई साहब। नहीं बिल्कुल ये तो नहीं। भाभी बस कुछ भी करिएगा, बाल मत खींचिएगा, इनके बाल थोड़े से वैसे ही। नहीं, मैंने देखा 2 महिलाएं जब लड़ती है सीधे बाल खींच लेती है। स्ट्रेट हो जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, हाथ दो। अरे ये नहीं होगी, नहीं पूछा, ये गलत है। नहीं ये गलत है। नहीं बिल्कुल, तुम हाथ दो तो आप पैकिंग करो ना। आप सामान बहन चारा। अरे मुझे बस 5 मिनट। जैसे सर भाईचारा जैसे होता है ना, ऐसे ये बहन चारा है। जोर से मेरे नेल्स बड़े नहीं जोर से खींचो ना। मैं अरे आप भी कैसी बातें कर रही हैं? 4 बर्तन कर रही हैं तो क्या हो जाएगा? नहीं पूजा सच्ची, तुम बात दो। सबने खाया ना मिलके। अरे तो क्या हो गया? चल। अरे ये ज्यादा हो गया, तो टाइम खराब हो गया। ये ज्यादा हो गया, बहुत तेज आएगा ये, मुझे पूरा विश्वास था तुम ही जीतोगी। तो अब हमारी गाड़ी वॉश होने जा रही है। तो मित्रों, क्योंकि आज हम यहाँ से अपनी गाड़ी को हिलाने वाले हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल है कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, रास्ते पे जो भी वाटर सोर्स हमें मिलेगा, वहाँ से अपनी गाड़ी का टैंक दोबारा रिफिल कर लेंगे। इसलिए हमें लगा कि गाड़ी ठीक ठाक गंदी हो गई है, मैनुअली उसको साफ़ करने से अच्छा है कि हमने ये जो एक वॉशर ऐड किया है विद पेट्रोल इंजन, इसका उपयोग किया जाए और इससे जो गाड़ी है उसको धोया जाए। पर धोते हमें इस चीज़ का अंदाज़ रहा ही नहीं कि हमने तो स्नान किया नहीं है, गाड़ी का सारा पानी हम खींचे ले रहे हैं। तो अंत में जाते जाते हो गया हमारी कैंपर वैन का पानी ख़त्म, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने हमारा ये जो पेट्रोल इंजन वॉशर है,
इसको हम लेके गए नदी तक और नदी से फिर हमने पानी खींच के अपनी कैंपर वैन में चढ़ाया। साथ ही इस दौरान पंकज जी जो यहाँ के उपखंड अधिकारी हैं, उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी आ गए और उनके साथ हमें जाना है आज दिन में। यहाँ पर एक हॉस्टल है वहाँ पर, और वहाँ मिलेंगे हम कुछ बच्चियों से, मिलेंगे नहीं मतलब इनफैक्ट आपको भी मिलवाएंगे कुछ बच्चियों से। तो बस इस प्रकार शेष दिन बीतने वाला है, पर फिलहाल बिछड़ने का समय आ गया है संजय जी से, तो उनको कह रहे हैं अलविदा। डन सर, मिलेंगे। वाह, आप गुजरात आइए राजस्थान, एकदम सर, मिलते हैं। डन। कब मिलेंगे देखते हैं। अति शीघ्र दिन हो बाद जल्दी होता है। देखिए साल भर बाद भी जल्दी होता है और एक दिन बाद भी जल्दी। साल भर से ज्यादा हो गया था इस बार। जब भी मिलेंगे पर जल्द मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। अरे ये 4-5 दिन हमने बड़ा अच्छा बिताया। अब जीवन के 4 दिन ही तो अच्छे, बड़े लोग बोलते हैं ना 4 दिन अच्छे बीते। तो 4 दिन अच्छे बीते सर। ठीक है ना सर, आप जहाँ भी रुके गुजरात, वो गुजरात क्या, जयपुर या अजमेर, वैसे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है भाभी। When you are in Gujarat. Yeah, all right. Maybe I'll be back there again. I don't know. All right. You have our number? Yeah. Send your number. You send me a message. Yeah, so that's fine. Most welcome. All right, thank you very much. Same if you come to France. Just let me a message. All right. चलो मम्मी। ठीक है भाभी, Hello, yeah, that's yeah, thank you very much. हम भी निकल रहे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान। ठीक है सर, मिलेंगे। ओके। बोलो सारे देवताओं की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो भारत माता की जय। तो मित्रों, इस प्रकार संजय जी और हम लगभग एक समय ही इस स्थान से निकले। बस वो जा रहे हैं गुजरात और हम जा रहे हैं मोरी के नज़दीक एक हॉस्टल, और मार्को हमारे साथ जाने वाले हैं। तो अच्छा है, बच्चों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा और उनको भी थोड़ा सा ग्रामीण बच्चों का जीवन शैली जो है वो देखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही समाप्त, पर इस वायदे के साथ कि यहाँ से आगे के अपने वैन लाइफ सफ़र के साथ आपसे कल मतलब अगले व्लॉग में फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे जी। नमस्कार।